আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই, রান্নায় তোমাকে চাই। শুক্রবার ত্রিপুরা সফরে পূর্ণলগ্নে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আগরতলার লঙ্কামুড়া ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত চৌকি পরিদর্শন করলেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে কর্তব্যরত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স জওয়ানদের সঙ্গে সরাসরি মিলিত হয়ে তাদের খোঁজখবর নেন এবং মনোবল বৃদ্ধি করেন তিনি। সীমান্ত চৌকিতে দাঁড়িয়ে বিএসএফ জওয়ানদের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আজ দেশের কোটি কোটি মানুষ রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারছেন, কারণ বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তের দিনরাত সজাগ প্রহরীর মতো জেগে আছেন। দেশের সার্বিক সুরক্ষায় জওয়ানদের এই অনন্য অবদানকে তিনি সশ্রদ্ধ কুর্নিশ জানান। এদিন সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় আধুনিকীকরণের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে বলেন, যেখানেই বিএসএফ জওয়ানরা মোতায়েন থাকবেন সেখানে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন স্মার্ট বর্ডার গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণকে সাথে নিয়ে সমগ্র ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তকে সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র ও অবদ্ধ হিসেবে গড়ে তোলা হবে। দেশের সুরক্ষাকে নিটল করতে বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় ইতিমধ্যেই একাধিক পাইলট প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। ভৌগোলিক ও কৌশলগত কারণে ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারকে দেশের অন্যতম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টিয়ার হিসেবে আখ্যা দেন তিনি। সীমান্ত সুরক্ষাকে আরও মজবুত করতে ত্রিপুরায় নতুন করে আরও 119 কিলোমিটার সীমান্ত জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বক্তব্যের শেষে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের রূপরেখা টেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, আমরা যদি একটি বিকশিত ভারত নির্মাণ করতে চাই তবে তার আগে আমাদের একটি সুরক্ষিত ভারত গড়ে তুলতে হবে, আর সেই সুরক্ষিত ভারতের মূল ভিত্তি হলেন আমাদের সীমান্তরক্ষী জওয়ানরা। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। जो सूर्य की किरणें हमारे जीवन का कारण है, वो ही हमारे विनाश का कारण बने। ओजोन का जो लेयर बीच में है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वो ही सूर्य की किरणों को मानव और अन्य जीवों के लायक बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीले गैसों के कारण लगातार ऊपर ये जहरीले गैस जाने के कारण लगातार रासायनिक प्रक्रियाएं अवकाश के अंदर होने के कारण ओजोन के लेयर के अंदर बहुत बड़ी छिद्र बने हैं, जो हमारे तापमान को विषम बनाकर रख दिए हैं। इसका एकमात्र उपाय अभी तक जो ढूंढा गया है वो वृक्षों की संख्या को बढ़ाने का है। और मुझे तो आनंद है मेरे जैसे व्यक्ति को कि जिन लोगों ने पर्यावरण का नुकसान किया है वो भी जरा संभले हैं, सचेत भी हुए हैं और ये नुकसान की परिपूर्ति में आगे आकर विश्व का हर देश आज पर्यावरण की चिंता कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के उपाय एक साथ चालू किए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, इको फ्रेंडली बिजली किस तरह से बनाई जाए, ऊर्जा का खर्च कैसे कम से कम हो, ढेर सारी चीजें एक साथ की हैं। और एक प्रकार से भारत का मॉडल पेरिस के सम्मेलन में आइडियल मॉडल के रूप में स्वीकारा गया। मगर पेरिस में जब सम्मेलन था बहुत सारी आशंकाएं विश्व भर के अखबारों में पर्यावरणवादियों ने आर्टिकल लिख कर व्यक्त की थी, क्या भारत ये कर पाएगा? मगर हमने पेरिस घोषणा की हर एक बिंदु को समय के पहले पूरा कर कर हमारा जो ऋग्वेद का संदेश था पर्यावरण की रक्षा करना का, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को हमने विश्व के सामने साबित कर रखा है। और मुझे आनंद है कि सीएपीएफ के सभी जवान, बीएसएफ के सभी जवान बड़े मनोयोग के साथ एक वृक्ष को अपना भाई बहन बच्चा मानकर इसका जतन कर रहे हैं।
और ये सरकारी आदेशों से प्रेरित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये हमारी साहजिक आदत होनी चाहिए और ये साहजिक आदत ही हमें बचा सकती है। हमने सदैव ये सोचना चाहिए कि जो बाढ़ हमारी सीमा की रक्षा करता है, जो बीएसएफ की चौकी हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो लगाने में कितने वृक्ष कटे हैं, इतने वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। इससे कई ज्यादा वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे बहुत आनंद है कि इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज बीएसएफ 37वीं वाहिनी में जवानों के आवास का ई लोकार्पण और बीएसएफ 57वीं वाहिनी में क्वार्टर गार्ड परिसर का ई शिलान्यास किया गया। जब ये कार्यक्रमों की रचना होती है, मेरी ऑफिस को बड़ी दुविधा होती है कि ये कार्यक्रम क्या गृह मंत्री के हाथ से कराना चाहिए। कई बार वो असमंजस में पड़ते हैं। तब मैं हमेशा कहता हूं, अगर एक आवास के अंदर लगी। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित डॉक्टर माणिक शाह, मुख्यमंत्री त्रिपुरा, श्री गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो, राजेंद्र कुमार जी, सचिव सीमा प्रबंधन विभाग, श्री प्रवीण कुमार जी, डीजी बीएसएफ, आलोक चक्रवर्ती जी, महानिरीक्षक बीएसएफ, और आज के इस सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित सभी सीमा प्रहरी भाइयों बहनों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय गुरु जी का पुण्यतिथि का दिन है। आप में से बहुत कम लोगों ने पूज्य गुरु जी का नाम सुना होगा, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बड़े से बड़े काम करने के बाद भी प्रसिद्धि की परवाह नहीं करते हैं। परम पूज्य गुरु जी उन्हीं लोगों में थे। उन्होंने पूरे जीवन असीम धैर्य, अटूट परिश्रम और मां भारती की भक्ति की भावना के साथ देश भर में लाखों लाखों कार्यकर्ता इस देश की समृद्धि, सुरक्षा, इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए समर्पित, इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास और इस देश की भाषाओं पर गौरव लेने वाले कार्यकर्ताओं की निर्मित के लिए उन्होंने लगाए। आरएसएस को एक प्रकार से आकार देने का काम उन्होंने किया और मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं ऐसे हैं जिन्होंने कभी जीवन में गुरुजी को देखा नहीं है, परंतु उनके संदेश, इनकी लिखी हुई पुस्तकें, इनके दिए हुए भाषण आज भी इतने महत्वपूर्ण है जो 1930 और 40 के दशक में हुआ करते थे। एक दूरदर्शी व्यक्तित्व जब 4-5 दशक तक एक संस्था के साथ बंद कर शिस्तबद्ध तरीके से काम करता है तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पूजनीय गुरु जी का जीवन उसी का बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब अभी आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ
मेरे हाथ से अगर के वृक्ष का पौधारोपण यहां पर कराया गया है। 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया है। इस साल हमने थोड़े कम वृक्ष लगाने का निर्णय किया है। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं, परंतु हमने ये तय किया है कि लगाए हुए वृक्षों में से जो वृक्ष बच नहीं पाए वो सबको पुनः लगाने का काम इस वर्ष में हम करने वाले हैं। और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिन है। हम सब जानते हैं कि विकास की अंधी दौड़ ने पर्यावरण को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। प्रकृति का दोहन करने की जगह प्रकृति का शोषण करने की वृत्ति ने, ये मानवीय स्वभाव ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला है। पृथ्वी का तापमान के बदलने के कारण जलवायु परिवर्तन और ओजोन के लेयर के बीच में पड़े बड़े बड़े छिद्र ये पृथ्वी को जीने लायक नहीं छोड़ेंगे अगर हम आज जागरूक होकर इसकी क्षति की परिपूर्ति की दिशा में काम नहीं करते। हम सबको मालूम है कि सूर्य की सीधी किरणें अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो जीवन। আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সর্ষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।